Okay students, let us integrate question number 1 of exercise number 3.4 of mathematics 2. Okay, question number 1 is given as we have to integrate integration of x square plus 2 dividing by x plus 1, x plus 2 and x plus 3. There are 3 linear factors which are non-repeated. Okay, x plus 1 is non-repeated means comes only one time. वो केवल एक ही बार आया है. x plus 2 our second linear factor, x plus 3 is our third linear factor. Means any one linear factor doesn't come more than one time. Okay, कोई भी linear factor x से ज़्यादा बार नहीं आया है. Okay, so we conclude that g of x is expressed as g of x means a function presented in denominator. Okay, g of x is expressed as non-repeated. G of x is expressed as non-repeated linear factors. Okay, so our type of proper rational function is first. That is the first type of proper rational function. Clear? So what are the process to integrate such type of integral? Here we always write x square plus 2 dividing by x plus 1, x plus 2, x plus 3 is equal to. Okay, this is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x plus 3. Okay, जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? वी एक्सप्रेस our proper rational function as a upon first linear factor plus b upon second non-repeated linear factor plus c upon x plus 3, that is non-repeated linear factor है. Okay, ऐसा हम इसको प्रेजेंट करते हैं. Then this is equal to the अब हम क्या करते हैं? इसका LCM लेते हैं. LCM that is x plus 1, x plus 2 और x plus 3. Clear? So LCM for x plus 1, x plus 2, x plus 3. Here only x plus 1 is present. Okay, what are the linear factors are required to complete this LCM? यहाँ पर x plus 1 है, हमें x plus 1, x plus 2, x plus 3 चाहिए, तो मीन्स हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. We have to multiply by x plus 2 and x plus 3. आ गया समझ में? ओके, LCM क्या है? x plus 1, x plus 2, x plus 3. यहाँ पे x plus 1 ही है, तो हमें किसकी जरूरत है? We have required x plus 2, x plus 3 to complete LCM. ओके, यहाँ पे देखो x plus 2 है, कौन से लिनियर फैक्टर की जरूरत है? x plus 1 और x plus 3 की. That is b into x plus 1 and x plus 3. यहाँ पे x plus 3 है. LCM को कंप्लीट करने के लिए, to complete LCM, there are two factors are required. First one is x plus 1 and second one is x plus 2. Clear हो गया? तो आपको you have studied it in from 7th या 6th standard. LCM को कैसे करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं? ओके, लेफ्ट हैंड साइड x square plus 2 upon x plus 1, x plus 2 and x plus 3. Okay, now x plus 1, x plus 2, x plus 3 get cancelled from these two sides of equal. Left hand side, right hand side, we get x square plus 2 is equal to a into x
ओके, अब हमें क्या करना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, इफ वी पुट x is equal to -1, take first factor is x plus 1 and x plus 1 is equal to, that is x plus 1 is equal to 0, so x is equal to -1। ओके, अब आप दोनों साइड में x is equal to -1 पुट कीजिए, that is -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2। ओके, पुट x is equal to -1। अब -1 आया कहां से, मैंने बताया, द फर्स्ट फैक्टर इज x plus 1, उसको इक्वल टू 0 कीजिए, इक्वलाइज विद 0, देन वी गेट x is equal to -1। तो x plus 1 क्या है, फैक्टर है, एंड x is equal to -1 is the first root, x is equal to -1 is the root and x plus 1 is the factor। तो जो फैक्टर था उसको आपने 0 किया, इक्वल टू 0 किया, वी गेट x is equal to -1। आपको इसमें रखना है, you have to put in this equation। हमने क्या किया, यहाँ -1 रखा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। देखो यहाँ पे a इंटू x इज -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। देखो ये तो जाएगा। ओके, देखो इस कंडीशन में आप जिसका आपने फैक्टर लिया है, मतलब जैसे a अपन x प्लस 1 लिया है, तो x प्लस 1 आप जहां से लिए थे केवल वही बचेगा, केवल वही बचेगा। देखो अभी 0 हो गया, -1 इंटू 0 0, 0 डिवाइडिंग 0, मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, बचा क्या, द रिमेनिंग टर्म रिमेनिंग इज a इंटू -1 प्लस 2 दैट इज 1, 3 minus 1 that is 2, so 3 is equal to 3, 2 ones are 2, ये कितना हुआ 1 और 2, 2 plus 1 3, इसका मतलब कितना, a is equal to 3/2, a is equal to 3/2। क्लियर, तो रिजल्ट मतलब कंक्लूजन क्या है, आपने जिसका फैक्टर लिया है, जैसे a/x plus 1, उसको क्या आपने किया, x plus 1 is equal to 0 किया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ओके, तो x is equal to -1, आपने जहां से लिया था केवल वही बचेगा। मतलब देखो यहाँ पर a, b और b सब 0 हो गए, वो रिमूव एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, केवल कैपिटल, केवल a ही बचेगा। जैसे अभी आप जब आप इसको लोगे, मतलब x plus 2 equal to 0 रखोगे, केवल b बचेगा, a और c गायब हो जाएगा। जब आप x इक्वल टू -3 रखोगे तो a और b गायब, a एंड b आर एलिमिनेटेड व्हेन वी पुट द फैक्टर ऑफ c। c का फैक्टर नहीं है, मतलब c के नीचे जो आपने लिया है। ओके, x plus 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। ओके, तो a और b नहीं रहेगा, केवल c बचेगा। क्लियर, और देखते हैं, तो इस तरह से पुट x plus 2 is equal to 0, we get x is equal to -2। okay, x is equal to -2, x is equal to -2, then we get x square, x is -2 to the whole square, that is 2 4, -2 का स्क्वायर 4 plus 2 6, there is 6। और देखो यहाँ पे जब आप x is equal to -2 रखोगे, x is equal to -2 plus 2 0, x is equal to -2 plus 1 एग्जिस्ट है, -2 plus 2 0। देखो c और a तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, b, so we get b into -2 plus 1 c -2 plus 3। समझ में आया? ओके,
स्टूडेंट्स? ओके, क्लियर ना भाई? अभी आपने यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट किया, -2 + 2 0, और यहाँ देखो आपने -2 रखा, -2 + 2 0, बच क्या गया? बचा अपने पास b इज -2 + 1, -2 + 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, -2 + 3 दैट इज सॉल्व कीजिए, तो b ये हो गया -1 और 1, सो दिस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू -6, ठीक है? b क्या मिल गया? -6, ये क्या मिला था? 3/2, ओके, दैट इज -2² 4 + 2 6, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया बचा। अब आपको क्या करना है? थर्ड फैक्टर इज x + 3, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, और -3 रखिए, -3 का स्क्वायर ऑफ -3 दैट इज 3 × 9 + 2 11 इज इक्वल टू, देखो यहाँ आप -3 रखोगे, -3 + 3 0 into something 0, यहाँ -3 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, -3 + 3 0, खत्म, क्या बचा? c मीन्स c into -3 + 1 -3 + 2, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? लास्ट बेंच, ओके, -3 9 + 2 11, ये 0 हो गया, सबको 0 किया, ये 0 को सबको 0 किया, बचा c, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू c into -3 + 1 -2, और ये रहा -1, c इज इक्वल टू 2 × 2, तो c इज इक्वल टू 11/2, क्लियर? c इज इक्वल टू 11/2। इन दिस में आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे आवर, ये जो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन था जिसे आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस भी किया था, ओके, अब आप यहाँ से a b c आप रिप्लेस कर सकते हो, आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट किया, आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट किया? a is 3/2, दैट इज 3/2 into x + 1 plus b is -6 upon x + 2, c is 1/2, sorry 11/2, c is 11/2 upon x + 3, क्लियर? क्या समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे? अब आप जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन, ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? दैट इज वेरी इजी, ओके। भाई इंटीग्रेशन का काम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f1x plus f2x dx इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोनों के पास आता है, ओके, क्लियर ना? तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, तो इधर ही कर लेते हैं, इट इज 3/2 1/x + 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 क्या होता है? log of mod of x + 1 -6 into 1/x + 1, integration of 1/x + 2 log of mod of x + 2 plus 11/2 1/x + 3 log of mod of x + 3 plus c, तो ये रहा आपका आंसर। दैट इज सो इजी, क्लियर ना? एनी डाउट? ओके, तो इस तरह से आप उसको g of x को एक्सप्रेस्ड करके in the form of linear factors, that is non repeated linear factors के फॉर्म में ब्रेक करके एंड उसको एक्सप्रेस करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज नॉन रिपीटेड linear factors, means g of x is expressed as non repeated linear factors।